Welcome friends. Today's topic 12th science physics, new topic current. Which we studied in 11th science or 9th 10th. Okay. What is meant by current? Q by T means charge passing through the conducting wire per unit time is known as the current or current electricity. So we knew that I is equal to Q by T. So इसका यूनिट हमको आगे काम लगेगा, इसलिए ये टॉपिक लिया है छोटा सा ही. चलो उसका यूनिट. So 7 fundamental physical quantities and their units are known as the fundamental units. So current is a fundamental physical quantity. Its unit is ampere, from the scientist name Ampere. Okay, I measured in ampere. Then Q. Q means electric charge. Electric charge having the unit coulomb. Coulomb. Time measured in second. So ampere is equal to coulomb upon second. Therefore coulomb is equal to ampere into second. So this is the important result. Whenever we are writing coulomb, we can also write the coulomb is equal to ampere into second. So the dimension formula of the coulomb, dimension formula, M L T A. M mass measured in kilogram है यहाँ पे नहीं है, that is m raised to 0. Length measured in meter और centimeter है यहाँ पे नहीं है तो 0. टाइम मेजर्ड इन सेकेंड है यहाँ पे, हाँ तो सेकेंड रेज टू 1. एम्पियर है यहाँ पे, एम्पियर रेज टू 1. तो जब भी कूलम आएगा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हम कूलम की जगह पे एम्पियर इंटू सेकेंड लिखेंगे और उसका डायमेंशन फॉर्मूला A1 T1 आप सिर्फ बोल सकते हो. So M0, L0, T1, A1. Then another small topic for MCQ. We knew that according to the quantization of electric charge, Q is equal to NE and I is equal to Q by T. Q की वैल्यू हमको पता है, quantization of electric charge, that is NE. नीचे आएगा T. So all these physical quantities are I means electric current, N मतलब number of electrons or you can say integer number, E means 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. N is equal to 1, 2, 3, 4, dash, 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 integer number. T means time. So from this equation, we can find the number of electrons for given value of current for a given time. Okay. So for example, if we have I is equal to 1 ampere and time t is equal to 1 second. Okay. If the current passing through the conducting wire is 1 ampere and the time is 1 second, then find the number of electrons passing through this conducting wire in a second. तो हमको number of electrons find करने हैं, that is N. तो यहाँ से हम I is equal to NE upon T इक्वेशन लिखेंगे, इसके ऊपर से N को सब्जेक्ट बना दो, I T upon E
ओके, I की वैल्यू है मेरे पास 1, T की वैल्यू भी 1 सेकेंड, E की वैल्यू 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. ओके, सो n is equal to 1 upon 1.6 means 0.625, 10 raised to minus 19, ऊपर लिखेंगे तो 10 raised to plus 19. So therefore number of electrons 6.25 into 10 raised to 18 passing through the conducting wire for a 1 ampere current in a 1 second. तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए जो 1 सेकेंड में कंडक्टिंग वायर में से पास होते हैं जब 1 एम्पियर करंट पास होता है तब. तो ये एमसीक्यू है, ऐसे कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं, 1 एम्पियर की जगह पे कोई भी आपको अलग वैल्यू दे सकते हैं, टाइम भी अलग दे सकते हैं. तो आपको ये इक्वेशन यूज करके I is equal to Q by T और Q is equal to N सब्स्टिट्यूट कर दो तो उसके ऊपर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे. ओके, नाउ our next topic, Coulomb's law. Coulomb's law is just like a Newton's gravitational law. तो वो आपको याद ही होगा, मैं क्विक फ्लैशबैक आपको बता देता हूँ. The gravitational force between any two masses m1 और m2 कोई भी हो, दो masses के बीच का gravitational force वो दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल में m1 m2 ऐसे लिखते थे, and inversely proportional to the square of the distance between them, r square लिखते थे. क्लियर? बाद में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम जो रखते थे वो कैपिटल G रखते थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो एग्जैक्टली सेम इसके जैसा ही फॉर्मूला और लॉ कूलम्स लॉ है. ये दोनों मास के बीच लगता था ग्रेविटेशनल फोर्स, आप Fg बोल सकते हो. Whereas for the electrical force means the force between two stationary point charges is given by the Fe. This is gravitational force, and Coulombian force or electrical force given by Fe. So that is between two stationary point charges. यहाँ पे m1 m2 मास थे, यहाँ पे आएगा q1 q2. ओके, और डिस्टेंस जो डिनोमिनेटर में r स्क्वायर है एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी वैसे ही आएगा. सो द स्टेटमेंट ऑफ द कूलम्स लॉ इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स, सुनना, द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of the distance between them, and the direction of the force is along the line joining the two charges. उसको मैं फिर से बोल देता हूँ कि कूलम्बियन फोर्स जो होता है वो Q1 Q2 जो दो चार्जेस होते हैं उसके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, और उसकी डायरेक्शन, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन दोनों चार्जेस को जॉइन करती हुई लाइन के ऊपर होती है. दैट इज द कूलम्स लॉ. ओके, सो यहाँ पे मैं उसका स्टेटमेंट लिखूंगा. द इलेक्ट्रिक फोर्स between two point charges is directly proportional to the
charges and inversely proportional to the square of the distance between them and the direction of force is along the line joining the two charges. ओके, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम विच वी कैन लर्न ऑल दी अदर टॉपिक्स. ये बार बार आने वाला इक्वेशन है. द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them, and the direction of force is along the line joining the two charges. This statement can be written as F proportional to Q1 Q2 upon R square. तो यहाँ पे Q1 Q2 क्या है? तो ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो R. क्लियर? So electrical force is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So proportionality constant आप रखो, तो यहाँ पे वो K रखेंगे हम Q1 Q2 upon R square. Equation number 1 where K is equal to, you can say Coulombian constant also. Coulombian constant. Its value is 9 into 10 raised to 9. 9 into 10 raised to 9. चलो यूनिट हमको लिखना होगा. फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होता ही है. मोस्टली आप लोग क्या करते हो, यूनिट भूल जाते हो लिखना, या आपको बनाना आता नहीं है, कंफ्यूजन होता है. तो के का यूनिट यहाँ पे क्या आएगा? तो हमारे पास ये इक्वेशन है. जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको यूनिट बनाना है तो वो जिस इक्वेशन में आता है वो इक्वेशन कोई भी एक याद करो. सपोज हमारे पास यहाँ पे तो ये रेडी है ही, F is equal to K Q1 Q2 upon R square. तो K को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. ओके, तो K को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? FR स्क्वायर. ये Q1 Q2 डिनोमिनेटर में आएंगे तो K का इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रफ में, K is equal to FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 ऐसा आएगा. ओके, F means force measured in न्यूटन, तो यहाँ पे न्यूटन में लिखता हूँ, बराबर, फोर्स का यूनिट. R मतलब डिस्टेंस मेजर्ड इन मीटर, तो R स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मीटर स्क्वायर. ओके, देन Q1 Q2 both are charges, charge measured in the coulomb, तो coulomb into coulomb square. Okay, so the value of Coulombian constant, or you can say proportionality constant, 9 into 10 raised to 9, ये फिक्स याद ही रखना है. और उसका यूनिट कैसे बना? तो K को सब्जेक्ट बना के हमने बनाया Nm स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. चलो, तो इसके ऊपर से हमको इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है. तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? चलो, न्यूटन मतलब याद है F is equal to ma. N मतलब न्यूटन मतलब यूनिट ऑफ फोर्स. न्यूटन की जगह पे हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. न्यूटन की जगह पे आ गया. मीटर स्क्वायर एज इट इज. कूलम स्क्वायर, तो अभी हमारे पास कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इनटू सेकंड है. ओके,
तो कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इनटू सेकेंड। तो नीचे स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर लिखूंगा। ओके, न्यूटन आ गया, ये मीटर स्क्वायर एज इट इज, कूलम की जगह पे, कूलम स्क्वायर की जगह पे एम्पियर स्क्वायर इनटू सेकेंड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब and then ampere square second raised to 4 done। so the dimension formula इसके ऊपर से क्या बनेगा, ये इसका यूनिट ही है, ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो। तो डायमेंशन फॉर्मूला गिवन बाय MLTA, मास कितना है किलोग्राम, 1, ओके, लेंथ m⁻³ तो l⁻³ आ जाएगा, टाइम मेजर्ड इन सेकेंड, डिनोमिनेटर में इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा -4, एम्पियर⁻², डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा -2। ओके, गॉट इट। सो फिर से F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², इक्वेशन नंबर 1 हो गया। K मींस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और यू कैन से कूलम्बियन कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इट कैन बी written as kilogram meter cube upon ampere square second raised to 4। dimension formula of the K is equal to m1 L 3t⁻⁴ a⁻²। so this is the basic know-how of the physical quantities which are in the equation, but some more information is there। K can be written as another physical quantity, but we have K is equal to 1/4 pi epsilon 0। K is equal to 1/4 pi, pi की वैल्यू जो हम 3.14 यूजुअली लेते हैं वही, एप्सिलॉन 0 फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पे आपके लिए। तो व्हाट इज मीन बाय एप्सिलॉन 0? सो एप्सिलॉन 0 shows the permittivity of the free space, permittivity of the free space or you can say vacuum। तो permittivity क्या होती है? तो permittivity का मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो भी मीडियम है, यहाँ पे तो 0 shows the free space और वैक्यूम के लिए हम ये बात कर रहे हैं, बट जो भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस या मटेरियल हो वो अपने में या अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है, परमिट कर सकता है, उसका मेजर है ये एप्सिलॉन 0। तो आप फिर से समझ लो कि एप्सिलॉन 0 मतलब जो वैक्यूम या फ्री स्पेस है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने की परमिट देती है उसका मेजर है। मीडियम चेंज होगा, मटेरियल चेंज होगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो उसको हम सिर्फ एप्सिलॉन से ही दिखाएंगे। एप्सिलॉन 0 स्टैंड्स फॉर दी परमिटिविटी फॉर दी फ्री स्पेस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ where epsilon 0 is equal to permittivity of free space। चलो उसकी वैल्यू भी है 8.85 into 10⁻⁻12 जो याद रखनी है हमको। जैसे स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बार बार आता था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड या उसके फोर्स के इक्वेशन आएंगे वो सब में एप्सिलॉन 0 या K तो आने वाला ही है, बराबर। तो उसकी वैल्यू 8.85 into 10⁻⁻12 और फिर से वापस यहाँ पे उसका यूनिट लिखना है। तो यूनिट क्या आएगा? तो यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एप्सिलॉन 0 का मेरे को यूनिट लिखना है, तो एप्सिलॉन 0 को सब्जेक्ट बनाओ फिर से,
तो एप्सिलॉन 0 यहाँ पे k की जगह पे ले लो, k नीचे ले लो, तो जो k का यूनिट होगा उससे उल्टा एप्सिलॉन 0 का यूनिट बनेगा। दैट्स इट। तो हमारे पास k का यूनिट तो है ही रेडी। ओके, तो इसका उल्टा कर दो तो क्या आएगा? ये आएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, बराबर। इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, अभी आपको पता ही है, तो इसका मैं उल्टा करके लिख देता हूँ, रिवर्स। चलो, तो ये जो है ये होगा यूनिट उसका किलोग्राम मीटर क्यूब नीचे आएगा, एम्पियर स्क्वायर सेकंड रेज़ टू 4 ऊपर आएगा, एम्पियर स्क्वायर सेकंड रेज़ टू 4 अपॉन किलोग्राम मीटर रेज़ टू 3। चलो, देन डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इक्वेशन डायमेंशन फॉर्मूला। बोलो बोलो। इसका उल्टा कर दो, उल्टा कर दो मतलब साइन चेंज कर दो, जो प्लस है वो माइनस कर दो, माइनस है वो प्लस कर दो। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला -1 -3 +4 +2 आएगा। क्लियर? तो k और एप्सिलॉन 0 दोनों के यूनिट मोस्टली आप बोल सकते हो सेम है, बट एक का याद रखो तो उसका उल्टा कर दो तो दूसरे का हो जाएगा। तो ये एमसीक्यू में बोर्ड में भी बहुत बार आया हुआ है, बराबर। चलो, देन नाउ वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 f इज इक्वल टू क्या था? k, बट अभी मेरे पास k इज इक्वल टू ये है, सो आई कैन राइट q1 q2। k की जगह पे ये वैल्यू मैं रखता हूं तो डिनोमिनेटर में 4 पाई एप्सिलॉन 0 आएगा, नीचे r स्क्वायर आएगा। देख लो, k की जगह पे खाली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखा है। सो यही इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर। चलो, ये फ्री स्पेस के लिए लिखा है। अगर कोई मीडियम है तो उसके लिए हमको परमिटिविटी उस मीडियम की जो होगी वो रखनी पड़ेगी। तो एप्सिलॉन 0 नहीं रखेंगे हम, एप्सिलॉन रखना पड़ेगा। तो फॉर ए गिवन मीडियम, फॉर ए गिवन मीडियम एफ मीडियम, एम फॉर मीडियम, वॉट एवर मे बी द मीडियम इज, तो मैं लिखूंगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 नहीं लिखूंगा, उसकी जगह पे एप्सिलॉन लिखूंगा, which shows the permittivity of the given medium, r square as it is. इक्वेशन नंबर 3। चलो, तो अभी मेरे पास दो इक्वेशन हो गए ये इन द फॉर्म ऑफ परमिटिविटी। दिस इज द फोर्स acted between the Q1 Q2 in a free space. This is the formula of force acted between the Q1 Q2 in a given medium. So comparison करनी है, अगर comparison जब भी आएगी हमको रेशियो लेना होगा। So divide equation 3 by equation 2. So we can write take equation 3 divided by equation 2. So f medium upon f, left hand side divided by left hand side, right hand side divided by right hand side। तो यहाँ पे रहेगा Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर लिया है तो 1 अपॉन एप्सिलॉन रहेगा, बराबर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एप्सिलॉन 0 अपॉन एप्सिलॉन लिख सकते हैं। denominator we can write in the numerator and denominator of the numerator can be written in the denominator। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 0 को डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो
एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 है वो क्या शो करता है, तो वो कैपिटल के लिखा है मैंने, कैपिटल के अलग चीज है, स्मॉल के अलग चीज है। स्मॉल के मतलब कांस्टेंट है, 9 into 10 raised to 9 है, whereas कैपिटल के stands for the dielectric constant। तो dielectric constant क्या होता है वो मैं बाजू में लिख देता हूं, पहले ये फिनिश कर दूं। F medium is equal to F upon K। तो यहां पे मैं बाजू में लिख देता हूं where K is equal to dielectric constant of a given medium means, इसका इक्वेशन ये होगा। एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। एप्सिलॉन 0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ free space। तो whenever you want to find the dielectric constant of a given medium, then take the ratio of a permittivity of that medium to the permittivity of the free space। दोनों परमिटिविटी का रेशियो ले लेगा, याद क्या रखने का, नीचे डिनोमिनेटर में फ्री स्पेस के लिए जो आती है वो एप्सिलॉन 0 लेना है। ओके, तो इसके ऊपर से हम ये लिख सकते हैं कि फ्री स्पेस में जब चार्ज था तब, और जो मीडियम है उसमें चार्ज था तब, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, फोर्स में क्या चेंज हुआ, तो ये इक्वेशन हमको मिला। इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं कि मीडियम में जो फोर्स लगता है वो जो फ्री स्पेस में फोर्स लगता है उससे kth पार्ट है। क्लियर? और यू कैन से 1 upon k टाइम, kth पार्ट डिनोमिनेटर में इसलिए, और यू कैन से 1 upon k टाइम। तो फोर्स चेंज होता है, मीडियम चेंज होगा तो फोर्स चेंज हो जाएगा। सो दिस इज द कूलम्स लॉ, स्टेटमेंट आपको लिखना ही है। देन फ्रॉम हियर दिस इज द पार्ट 1 एक्चुअली। स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड और इक्वेशन ही हमको लिखने है, डायरेक्शन इसमें कहीं पे हमने शो नहीं की है, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के रिलेटेड स्केलर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ है। क्लियर? तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि राइट द कूलम्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स स्केलर फॉर्म, तो आपको स्टेटमेंट लिखनी है, एंड ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, समझा है, वो आपको स्केलर फॉर्म में लिखना है। क्लियर? ओके।